فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے، سورت ملانا یہ سنت نہیں۔ قول کی امام اہل سنت نے تشریح کی ہے، اس کے مطابق تنہا پڑھنے والے کو تو یہ بہتر افضل ہے کہ وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا کیسا ہے یا کوئی آیت پڑھنا کیسا ہے، اسی اختلافی ٹاپک کے اوپر یہاں پر میں کچھ علماء کرام کا بیان ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کیا ہوں تاکہ ہمارا کنفیوژن دور ہو سکے اور سنت کیا ہے ہمیں معلوم ہو سکے۔ یہاں پر ہمیں بہت کچھ معلوم ہوگا، جیسے کہ عوام میں کنفیوژن کہاں سے آتا ہے، مولوی حضرات کا علمی لیول پتہ چلے گا، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس کا بیان سننا چاہیے اور کس کا نہیں۔ پہلے سبھی کا کلپ سنیں گے اور آخر میں حدیث بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ 10-15 منٹ کے کلپ میں ممکن نہیں ہے کہ بہت سارے حضرات کا بیان جمع کروں۔ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانے کے قائل ہیں، اس لیے ان کا کلپ ایڈ نہیں کیا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں جناب اسرار قادری صاحب، چلیے سنتے ہیں حضرت کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس میں 2 رکعت سے زائد ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری رکعتوں، تیسری اور چوتھی رکعتوں میں کیا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے پڑھے تو یاد آ گیا کہ یار صرف سورہ فاتحہ ہی ملانا تھا۔ تو اب وہی سوال ہے کہ سجدے سہو کریں گے، یعنی ایک چیز آپ دھیان میں رکھیے کہ فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کا ملانا بھی واجب نہیں ہے، سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے، اور اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورت بھی پڑھ لیا تو بھی سجدے سہو نہیں ہے۔ اگر کسی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھا تو بھی سجدے سہو واجب نہیں ہے، اور اگر کسی نے سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھا، بس 3 تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا تو بھی نماز ہو جائے گی، سجدے سہو نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خاموش رہا، صرف 3 تسبیح کی مقدار کھڑا رہا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے متعلق آپ بحر شریعت میں دیکھ لیجئے، وہاں جو لکھا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ فرض کی پچھلی رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی میں سورت ملائی تو سجدے سہو واجب نہیں، اور قصدن ملائی جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی چاہے بھول کر ملائے اور چاہے جان بوجھ کر ملائے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر امام کو نہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو امام ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ صرف پڑھے، سورت نہ ملائے، کیونکہ یہ جو ہے اکتاہٹ کے لوگ شکار نہ ہو، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ باقی اگر کوئی ملا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جناب، اسرار قادری صاحب کے حساب سے جو کہ ابھی انہوں نے بحر شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملاتا ہے یا نہیں ملاتا ہے، اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ 3 تسبیح کی مقدار تک کھڑا رہتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ان کے حساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیے نیکسٹ سنتے ہیں۔ یہ ہیں جناب حضرت مولانا مفتی فضل حسین صاحب قاسمی، چلیے حضرت کی سنتے ہیں۔ کہ فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر میں نے 2-3 آیت یا پوری سورت پڑھ لیا تو کیا مجھ پر سجدے سہو واجب ہو جائے گا؟ جواب مطلوب ہے۔ تو آج کے اس سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 یا 4 رکعت والی فرض نمازوں میں تیسری یا چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا سنت ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی آیت یا سورت نہ پڑھنا سنت ہے۔ اب اگر کسی نے فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیت یا سورت پڑھ لی تو زیادہ سے زیادہ اس سے سنت کی خلاف ورزی ہوئی، اور سنت کی خلاف ورزی سے سجدے سہو لازم نہیں ہوتا۔ پس بالقصد سنت کی خلاف ورزی تو ہرگز نہ کریں،
इल्ला ये कि भूल हो जाए, क्योंकि सुन्नत के साथ नमाज अदा करने में खुशू खुजू बरकरार रहता है, हुसूल सवाब में इजाफा होता है। चलिए बात समझ में आ गई हजरत की। इनका कहना है कि फ़र्ज़ के तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा ही पढ़ना, इस पे सुन्नत का इत्तेफाक है। पता नहीं इन्होंने, बहरहाल इन्होंने किसी किताब का रेफरेंस नहीं दिया। और जैसा कि मैंने शुरू में कह दिया है कि मेरे साथ रहें, सुनते चलें, देखिए कैसे मसले मसाइल का अंबार लगता है, और इंशाअल्लाह जो आखिर में हम देखेंगे सुन्नत क्या है। ओके, बहरहाल तो इनका कहना है कि अगर कोई पढ़ भी लेता है फ़र्ज़ की तीसरी चौथी रकात में कोई सूरह फातिहा के बाद अगर कोई सूरह पढ़ भी लेता है तो सजदा सहू वाजिब नहीं होगा, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत है। चलिए इनका इल्म है, चलिए आगे सुनते हैं। जी ये है अल्लामा अजहर सईद साहब, चलिए हजरत की सुनते हैं। सूरत मिलाएंगे, ये 2 रकते होंगी। अब तीसरी रकत में जब हम खड़े होंगे तो सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे। अब हमें सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सूरत फातिहा पढ़ लेना यही काफ़ी है। तीसरी और चौथी रकत में फ़र्ज़ों में सूरत फातिहा पढ़ लेना यही काफ़ी है, सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सूरत फातिहा पढ़ लेंगे तो हमारी नमाज हो जाएगी। ये सिर्फ फ़र्ज़ों की मैंने बताई है। हजरत ने क्या कहा कि फ़र्ज़ की दूसरी तीसरी रकात में अगर आप सूरह फातिहा पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। इनके बाद से क्लियर पता नहीं चल रहा है सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए। चलिए थोड़ी सी और मज़ीद आगे सुनते हैं। सुन्नतों के बारे में नहीं, सुन्नतों की चारों रकतों में सूरत मिलाना ये ज़रूरी है, लेकिन फ़र्ज़ों में शरीयत में ये रियायत है कि आखिरी जो 2 रकते हैं उनमें सूरत ना मिलाएं, सूरत फातिहा पढ़ लें तो तब भी नमाज हो जाएगी। जी हजरत की बात नोट की जाए। इन्होंने क्या कहा कि शरीयत में रियायत है, यहाँ तक कि शरीयत ने रियायत दी है, छूट है कि अगर आप चाहें तो फ़र्ज़ों की आखिरी तीसरी चौथी रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ लें, कोई सूरह ना मिलाएं तो आपकी नमाज हो जाएगी। बहरहाल मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि आप मेरे साथ चलिए, सुनते रहिए, देखिए मसले मसाइल के कैसे अंबार लगता है। उम्मत कन्फ्यूज़न में क्यों है आपको खुद पता चल जाएगा। बहरहाल मैं इनके पूरा क्लिप सुना हूँ। अभी चूँकि मेरा मौजू सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की दूसरी तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाने का मसला है, इसलिए मैं सिर्फ वही कोट कर रहा हूँ। बहरहाल इनके तकरीर से ये बिल्कुल पता नहीं चला ये कहना क्या चाहते हैं, सुन्नत क्या है, और बहरहाल इनके बात से तो बिल्कुल पता नहीं चला कि ये कहना क्या चाहते हैं और सुन्नत क्या है, या ये किस किताब के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। चलिए अभी और आगे सुनते हैं, देखते हैं और क्या मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब, चलिए हजरत की सुनते हैं। तो क्या हुक्म है, 4 रकत सुन्नत में तीसरी रकत में सूरत मिलाना भूल जाएं तो क्या सजदा सहव वाजिब होगा? मोहम्मद असद रब्बानी बिहार से। फ़र्ज नमाज में तो तीसरी और चौथी रकत में सूरत नहीं मिलाई जाती, अगर कोई मिला ले तो भी कोई यानी हर्ज नहीं है, बेहतर ये कि ना मिलाई जाए। हजरत ने क्लियर कह दिया कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद में कोई सूरह नहीं मिलाई जाती, अगर कोई मिला भी लेता है तो कोई हरज नहीं है, बेहतर है ना मिलाएं। ये क्लिप मैं पूरा सुन चुका हूँ, इस क्लिप के अलावा दूसरा क्लिप मुझे नहीं मिला है। बहरहाल इस क्लिप में इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ रेफरेंस नहीं दिया है, ना ही किताब का ना ही अहादीस का। एनीवे ये मुख्तसर क्लिप ही मुझे मिल पाया है। ये हैं जनाब कासमी साहब, AM कासमी, अब AM से क्या है मैं भूल रहा हूँ। एनीवे ये कासमी साहब, चलिए सुनते हैं हजरत क्या फरमा रहे हैं। अच्छे तरीके से समझ ले, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना ये सुन्नत है जी, सूरत मिलाना ये सुन्नत नहीं है। माशाअल्लाह। अब अगर कोई तीसरी रकात में या चौथी रकात में या दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला देता है गलती से या जानबूझकर ही मिला दी उसने, तो सजदा साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट सजदा साफ के नमाज आप कंप्लीट कर लें, आपकी नमाज हो जाएगी। बहरहाल हजरत ने कह दिया कि इस फ़र्ज़ की दूसरी तीसरी रकात में सूरह फातिहा ही पढ़ना सुन्नत है। अगर कोई सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह मिला देता है तो कोई मुश्किल नहीं है, बगैर सजदा सहू की नमाज हो जाएगी। बहरहाल मैंने इनका पूरा क्लिप सुना है, इससे ज़्यादा कुछ भी इन्होंने बयान नहीं किया है, कोई किताब का रेफरेंस नहीं दिया है। ये है जनाब कारी मोहम्मद अयूब ख़ान साहब, चलिए हजरत की सुनते हैं। कारी मोहम्मद अयूब ख़ान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब दूसरी बात आ गई फ़र्ज़, इसका मसला अलग है। फ़र्ज़ों की आप 4 पढ़ रहे हूँ, 3 पढ़ रहे हूँ, 4 3 ज़ोहर के
असर के या इशा के या मगरिब की 3 फ़र्ज़। तो मेरे भाई गौर से समात करना, ज़ोहर के फ़र्ज़ हूँ या असर के फ़र्ज़ हूँ या इशा के फ़र्ज़ हूँ या मगरिब के फ़र्ज़ हूँ, पहली 2 रकतों में हम सूरत फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। आखिर में 1 फ़र्ज़ बचे या 2 बचे जी, उसमें सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ेंगे। माशाअल्लाह। ये दोबारा समात कर लें जी, कि ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ रहे हूँ, असर के पढ़ रहे हूँ या इशा के या मगरिब के, जी, पहली 2 रकत जो हम पढ़ेंगे उन पहली 2 रकत में हम सूरत फातिहा भी पढ़ेंगे और सूरत फातिहा के साथ सूरत भी मिलाएंगे। बाकी बचे 2 यानी ज़ोहर, असर, इशा, उन 2 में हम सिर्फ आखिरी 2 में हम सूरत फातिहा अकेली पढ़ेंगे, रुकू सजूद करेंगे। मगरिब का 1 बच गया, वो भी हम सिर्फ 1 रकत में सूरत फातिहा पढ़ेंगे, रुकू सजूद करेंगे, हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि मैं उन उलमाए कराम या उन हजरात को भी शामिल करूंगा क्लिप में, ताकि आप एजुकेट हों, उम्मत को पता चले, हमें आपको पता चले कि हमारे अंदर कन्फ्यूज़न कहाँ से आया, हमारे अंदर कन्फ्यूज़न कैसे पैदा हुआ है। ठीक है, अभी आप समझ रहे हैं। ये हैं जनाब मुफ्ती हसन मदनी साहब। चलिए हजरत के सुनते हैं। बयान कर चुके हैं। असल में एक बहुत ज़्यादा लोगों में मसला इस तरह का आम कर दिया गया है कि फ़र्ज़ की 3री या 4थी रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाने से सजदा साहब लाज़िम हो जाता है। हालांकि ऐसा असलन नहीं है कि फ़र्ज़ की 3री या 4थी रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएं तो सजदा साहब लाज़िम आता है। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई वाजिब छूट ही नहीं रहा। ये वाजिब है ही नहीं कि फ़र्ज़ की 3री और 4थी रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत ना मिलाई जाए। कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसकी वजह से सजदा साहब लाजिम होता हो। सूरह फातिहा के बाद अगर किसी ने सूरत मिलाई, बहरहाल हजरत ने भी क्लियर कर दिया कि अगर सूरह फ़र्ज़ की 2री 3री रकात में अगर कोई सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला लेता है तो सजदा सहू वाजिब नहीं है। बहरहाल पीछे उलमा कराम ने भी यही, जैसा कि हम लोग सुन चुके हैं। चलिए और मज़ीद आगे सुनते हैं। तो अगर तन्हा पढ़ रहा है, अकेला पढ़ रहा है, तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जो कौल की इमाम अहले सुन्नत ने तशरीह की है उसके मुताबिक तन्हा पढ़ने वाले को तो ये बेहतर है, माशाअल्लाह, अफजल है सुभान कि अल्लाह। वो फ़र्ज़ की 3री और 4थी रकात में सूरतुल फातिहा के बाद सूरत मिला ले। अगर अकेला पढ़ रहा है, जमात उसको नहीं मिली, तन्हाई के अंदर पढ़ रहा है तो मिलाए। जो इस्लामी बहनें हैं वो पढ़ती हैं तो वो तन्हाई पढ़ती हैं तो वो मिलाएं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इमाम के लिए उलमा ने ये लिखा कि चूंकि इमाम को हुक्म ये है कि वो लोगों को तखफीफ के साथ नमाज पढ़ाएगा और फ़र्ज़ की 3री 4थी रकात में फ़कत वो सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद वो सूरत ना मिलाए। अगर सूरत मिलाने की वजह से मुक्तदियों के ऊपर, पीछे जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके ऊपर गिरानी होती है, उनको भारी लगता है, तो उसको हुक्म है, सख्त हुक्म है उसके लिए कि हुर्मत वाला हुक्म है कि उसको वो फौरन रुकू करे, वो सूरत ना मिलाए। लेकिन अगर उसने भी सूरत मिला ली तो इस सूरत में सजदा साहब लाजिम नहीं होगा, सजदा साहब उस पर भी लाजिम। मैंने शुरू में ही कहा था जनाब कि आप लोग सिर्फ साथ में रहिए। देखिए मसले मसाइल का अंबार लग जाएगा। देखें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यहाँ पर, अभी क्लियर हो गया। ये अभी हनफी, बाकी अभी हम लोगों ने जो पीछे सुना वो हजरात भी हनफी। ठीक है, देखिए अभी मसले मसाइल कैसे सामने आ रहे हैं। हज़रत ने क्या कहा कि अफजल है। बहरहाल इन्होंने अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया और अहमद रजा साहब का हवाला दिया, बाकी इन्होंने किसी अहादीस का हवाला नहीं दिया। एनीवे साथ में बस आप साथ बने रहिए। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, या यूँ कह दिया जाए बहुत ही बदनाम पर्सनालिटी, और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। तो चलिए इस मसले पे देखते हैं, हजरत की सुनते हैं और फैसला आपका होगा। क्या जमात के साथ 3री और 4थी रकत में अलहम्द के बाद कोई सूरत पढ़ सकते हैं? नबी अलैहिस्सलाम से बुखारी मुस्लिम में साबित है कि आपने जोर और असर की 4 रकतों में सूरत मिलाई है और आपने सूरत के कुछ आयात बुलंद आवाज में पढ़ी है ताकि मुक्तदी को पता चल जाए। फर्ज नमाज की 3री और 4थी रकत में सूरत छोड़ देना जवाज की हद तक है। अफजल यही है कि 3री 4थी में भी सूरत मिलाएं। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अब मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप खुद समझदार हैं। इंजीनियर साहब का कहना है कि फ़र्ज़ की 3री और 4थी रकात में
یہ جواز کے حد تک ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نہ ملائیں، لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورہ پڑھ لیں، ملا لیں۔ چلیے اور مزید سنتے ہیں۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، میں نے ریسرچ پیپر جو اپنا نماز محمدی والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں باقاعدہ اس کا ریفرنس دیا ہے۔ چلیے اب حدیث بھی پڑھتے ہیں اور ان کا ریسرچ پیپر بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ اپنا خود فیصلہ کر لیجئے گا، ٹھیک؟ یہ رہا ریسرچ پیپر نمبر 8، مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اب یہاں پر ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 9۔ پوائنٹ نمبر 9، یس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اور سورت بھی یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 762، صحیح مسلم حدیث نمبر 1013، سنن ابی داؤد 859۔ تو چلیے صحیح بخاری دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رہا بخاری شریف حدیث نمبر 762۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار ہمیں 1 آدھ آیت سنا بھی دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے صرف اور صرف کتاب و سنت کی بات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اس چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔